If you have been deprived of female attention all your life, the moment you start getting that attention, you will be stuck in a very dangerous position, especially in your young years. If you're 18, 19, 20, and if you are just getting this attention and all your life you have been deprived, if you do not take care of this situation properly right now, you will be stuck in a loop, and a very dangerous loop, which will fuck up your few months or even years of your life. This has happened with me. This has happened with a lot of people around me, and this issue is becoming very common. I do not want any of you suffering with this shit. Let me begin with a story of mine. When I was 15, I wanted female attention. Since that point, I had zero female attention, zero female interaction all my life. People think zero female interaction just means no romantic interaction with a girl. By zero female interaction, I mean I didn't even shake a girl's hand. I didn't even tell a girl hi. Neither a girl ever talked to me. So zero. जीरो का मतलब ये नहीं कि मुझे अटेंशन चाहिए नहीं थी. मेरा एक ड्रीम था, in the bucket list of what you want, the number one priority for me was getting a girlfriend. I was very fat. I was very obese. I was 120 kgs. And इस वजह से मुझे कोई interaction नहीं था. अब मैंने 2 साल क्या किए, 11th and 12th when I was 16 and 17, I decided to work out. Also, I was watching a lot of YouTube videos on how to get a girlfriend, how to talk to females and बहुत सारा. अभी jacked backed होके, I'll put a picture of here how I look. Not that good. I still carried a lot of body fat. But comparing to 120 kgs, I had gone down to 100 kgs. 20 kg almost मैंने lose कर दिया था. And maybe 5-6 kgs of muscle mass I had put on. I went to college. मेरे कॉलेज में के बस में एक लड़की आई. She came in first 3-4 days. I was like extremely shy to interact with her, but she was my type. Like मुझे उसके साथ I wanted to talk to. 3-4 days हो गए. अभी I was like, man, I need to talk to her. कुछ तो करके I have to get in the conversation with her and to start some shit. So मैंने जो सारे YouTube videos देखे थे, tips and tricks, मैंने apply किया. Started a conversation indirectly with her because I did not want to directly go when I was too shy. I was the new student in the bus, okay? So I was like, oh bro, which class are you? You're doing this course, okay? You're doing this course. 2 आदमियों के बाद she was already ready कि this guy is gonna ask me because she was hearing all this shit. Then I turned to her and then I asked her, what are you doing? उससे मैंने इन दोनों की गांड पे लात मारी, fuck them bro, and so इसके साथ conversation चालू कर दिया मैंने. Next day I went and sat with her. उस दिन के बाद I was like, fuck man, I am in love with her. I'll tell you why. She was the first girl to reciprocate whatever I am doing. जिससे वो हंस के बात करे फिर से, जिससे वो हंस के टच करके ऐसे हाथ मार के या फिर बात करे. That had never happened with me. So that thing, dopamine, like इससे पहले मुझे जब डोपामिन रश हुआ था ना अब मेरी लाइफ में, सबसे हाईएस्ट डोपामिन रश हैपेंड व्हेन आई ट्राइड निकोटीन फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हेन आई वेप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट लाइक लेवल ऑफ हाई दैट आई गॉट, उसके बाद मुझे वो फीलिंग इसके साथ मिली क्योंकि मुझे लाइफ में कभी मिला ही नहीं था. सो इट वाज लाइक अ वेप हिट कि फक मैन, व्हाट द फक इज दिस शिट, दिस इज सो अमेजिंग मैन, आई हैव बीन मिसिंग आउट ऑन दिस ऑल माय लाइफ. नेक्स्ट डे आई वेंट अगेन एंड नेक्स्ट डे एक और लेवल इंक्रीज हुआ वेयर शी वाज टचिंग मी, होल्डिंग माय हैंड लाइक दिस एंड स्लीपिंग ऑन माय शोल्डर एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई एम लाइक मैन, दिस शिट इज वाइल्ड. एट द एंड ऑफ द डे 3-4 दिन के बाद बोल दिया कि आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई लाइक यू. तो मैंने डिसाइड कर लिया था शादी भी कर लूंगा उसके साथ. तो मैंने बोल भी दिया उसको मुंह पे कि आई वांट टू मैरी यू. शी वाज लाइक कि बहन के लौड़े, इट्स जस्ट बीन लाइक व्हाट, नॉट इवन अ वीक सिंस आई मेट यू, व्हाट आर यू सेइंग? एंड आई एम नॉट जोकिंग, इवन दिस इज नॉट द मिस्टेक, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम. प्रैक्टिस करती है तो इंसान सीखता है ना. द मिस्टेक वाज व्हेन शी टोल्ड मी दैट आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. एंड मैंने डिसाइड कर दिया था पहले कि इफ एनी गर्ल डजंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी, आई एम नॉट गोना बी दैट गर्ल्स फ्रेंड, आई एम गोना शो मिडिल फिंगर एंड मूव ऑन टू अनदर गर्ल. इसने मुझे बोला प्रॉपर एक मर्द की तरह. I was like, okay, no issues. You told me that. Now I'm gonna back off. If you're not giving me a tag, then I'm not gonna go for situationship and all. Fuck that shit. मुझे girlfriend चाहिए. It's like, no, I'm not ready. I'm like, fuck that shit, bro. I'm going. तो मैं उठ के वो सीट से I went to another seat. I put earphones. 10 मिनट के बाद, when you take a vape hit and for like 20 minutes you don't take, you crave for another hit. मुझे वो craving आ गई. Fuck bro, I actually want that attention. वो हाथ होल्ड करना, वो ये, क्योंकि सारी जिंदगी मुझे नहीं मिला वो. तो I went back to her and I'm like, okay, I'm ready to be your friend, but I'll be waiting for you whenever you are ready. You tell me. उधर तक भी ठीक था. एक दिन she led me on like crazy. She was like, okay, I think we should get into a relationship and you are the guy I want. And then she took me to her classroom. Bus stop से लेके classroom तक. And her classroom was on 5th floor. She told me that उधर जाके I will tell you that what our situation will be. मैं दिमाग में सोच लिया था कि she is gonna be my girlfriend. I was ready also कि एक फोटो लेके story पे डालूंगा, ये particular गाना story पे डालूंगा and all of that shit. Suddenly उधर कुछ लड़के आते हैं. She runs towards them. एक लड़के को hug करती है, एक लड़के के बालों के साथ खेलती है. And those people come to me and they're like, hi
हाय ब्रो आई एम हर फ्रेंड एंड ये वो करके वो मुझे मिल रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग जेलस ओवर हियर कि बहनचोद व्हाट द फक आर यू डूइंग, यू आर प्लेइंग विद सम गाइज हियर एंड ऑल, यू आर गोइंग टू मेक द रिलेशनशिप ऑफिशियल, ये सब बोल के यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट शिट. आई वाज गेटिंग एंग्री ऑन दोस गाइज एंड दोस गाइज वर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी एंड आई एम लाइक ब्रो आई डोंट वांट टू फकिंग आंसर योर क्वेश्चन. दैट गाइज लाइक आस्किंग मी कि तुम बीबीए में क्या कोर्स कर रहे हो ये वो. आई एम लाइक ब्रो फक दैट शिट ब्रो, मेरी बंदी उधर फ्यूचर बंदी कुछ लड़के के बाल के साथ खेल रही है, यू आर आस्किंग मी व्हाट कोर्स आई एम डूइंग, फक दैट शिट. देन शी कम्स शी सेंड्स देम टू द क्लासरूम एंड आई डोंट नो व्हाई शी डिड दैट. मुझे दिखाना चाहती थी शायद कि मेरे पास बहुत अटेंशन है मेल्स का एंड ऑल ऑफ दैट. ओके एंड आई डिडंट हैव फीमेल अटेंशन. उसको छोड़ के आई हैड जीरो. ठीक है, बिकॉज आई वाज शॉप्ड एज फक बैक देन. इवन देन आई हैड लॉस्ट वेट बट आई वाज स्टिल शॉप्ड एज फक. आई हैड जीरो. तो शी शोड मी कि देखो मेरे पास इतना है तुम्हारे पास ना. इनडायरेक्टली आई नहीं है व्हाट शी वांटेड टू शो. ओके फिर वो मुझे बोलती है कि माय आंसर इज द सेम एंड आई एम लाइक यो व्हाट द फक. मैं सीधा यू नो फक दैट शिट चल के चला गया. मैंने मैसेज किया फिर उसको यू नो फक यू, ऐसे प्रॉपर एग्जैक्ट फक यू, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू अगेन, लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू. ये सब क्या किया, आई डोंट केयर अबाउट योर एक्सक्यूजेस एंड शिट, आई एम नेवर गोना सी योर फेस अगेन. ये सब बोल दिया. दिस टाइम 2 घंटे तक आई वाज विदाउट हर. 2 घंटे के बाद अगेन क्रेविंग किक्ड इन. अगेन आई वेंट बैक टू हर. इवन आफ्टर दैट दिस कैरीड ऑन 6 महीने तक अंटिल मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी. सेम चीज ऐसे ही शी हैड टोल्ड कि हाँ विल टॉक एंड ये वो रिलेशनशिप. एंड इसके एक दिन पहले ही हमने किस भी कर लिया था बस में. आई एम लाइक किस भी कर लिया अब तो इसने, तो मे बी अब तो मुझे ले लेगी बॉयफ्रेंड की तरह. 6 महीने हो गए इतना ये गांडूगिरी करते हुए मुझे नो लेट मे बी अभी. एंड मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बोल भी दिया था कि यू नो शी हैज कॉल्ड मी एंड आई थिंक दिस टाइम वी विल गेट इनटू रिलेशनशिप, आई विल सेंड यू अ फोटो फॉर श्योर. ये सब करके तो मैं गया कॉलेज से एक दोस्त के कार में सीधा जस्ट बेक एंड देन आई गॉट इन अ फ्यू केक्स एंड कप केक्स एंड शिट. एक पूरा कवर में लेके आया मैं. वी हैड टू मीट राइट. तो हम डायरेक्टली बस में मिलते हैं. तुम्हारे क्लासेस सब कंप्लीट कर लो करके. मैंने अपने क्लासेस बंक कर दिए थे लास्ट के स्पेशली. देन आई वेंट और आई टोल्ड एवरीवन कि मैं इसको भी आएगी, आई एम गोना आस्क हर आउट एंड ऑल दैट शिट. एंड ऑल माय फ्रेंड्स वर इन द बस, दे वर वेटिंग फॉर हर टू कम. सीधा आती है एंड देन शी सिट्स विद समवन एल्स एंड आई फ्लिप. एंड तभी माय सेल्फ रेस्पेक्ट को मैंने लात मार दिया और मैंने बोला कि इट इज ईगो नाउ, इट इज नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट. ये ईगो का खेल है. अभी मेरा ईगो आ गया बीच में. व्हाट द फक एम आई डूइंग? आई एम अ जैक्ड गाय. आई हैव अ लॉट ऑफ माय लाइफ अहेड. आई हैव एम्बिशंस, आई हैव गोल्स, आई हैव मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर. मैं ये सब साइड पे रख के इस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड द रीजन व्हाई आई वाज गोइंग बैक टू हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वाज नॉट बिकॉज ऑफ लव और लाइक और क्रश, कुछ भी नहीं. इट वाज जस्ट बिकॉज मुझे वो अटेंशन मिल रही थी जो मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं मिली. एंड देन उसके अलावा मुझे और कोई वो अटेंशन नहीं दे रहा था. एंड शी वाज द ओनली पर्सन, अपॉर्चुनिटी और लाइक द इजीएस्ट वे फॉर मी टू मेक अ गर्लफ्रेंड. बाकी की लड़कियों को अभी जाना, आस्क आउट करना, ये वो इट्स फ्रिक्शन एंड मे बी आई कैन गेट रिजेक्टेड. तो वो सब की वजह शी वाज द इजीएस्ट ऑप्शन और इजीएस्ट अवेलेबिलिटी फॉर मी टू गेट इन दैट अटेंशन का किक. दिस इज प्रूविंग दैट एक अटेंशन के लिए यू कैन डू एनीथिंग एज अ गाय, especially if you've been deprived of it. लड़कियों को पता चल गया है कि लड़के स्पेशली जो अटेंशन के भूखे होते हैं, these people are very easy for girls to use for their boredom. तो ये लड़कों को ब्रेड क्रम करती है. I'm not gonna blame them because it's not their fault over here. They have the superpower, they are not their fault. इसमें fault है लड़कों की. जब तुम्हें पता है कि ये लड़की मेरे लिए गलत है तो तुम खुद क्यों अपनी गांड मरवाने के लिए जा रहे हो? But these people are not ready to accept that the girl doesn't like them because their ego will get hurt. Even I was in this place. मैंने भी accept नहीं किया था. मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत बोला कि she doesn't like you enough bro. But I'm like no man, she's coming and telling me bro she's playing games with you. If a girl tells you that she's not ready for a relationship, that she's not ready for a relationship with you, and ये चीज मुझे लड़की ने खुद बोली है. ये सेम स्टोरी मैंने लड़की के पास लेके गया था, मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के पास. अब she was my friend back then. She told me that I'll tell you as a girl, if a girl says कि I am not ready for a relationship but I like you in wo, she's not ready for a relationship with you. She just doesn't like you enough. But again इसमें debate आता है कि if she doesn't like you enough then ये sex क्यों करना, ये वो क्यों करना and all of that bullshit. Again I don't want to question anyone's morality कि तुम ये क्यों कर रहे हो, but जब हमें पता है कि ये सब हो रहा है, why do we have to get into that situation? ठीक है, now let's get back to the serious topic because it's going to be a little hard for you to accept. The only way to get out of this loop is to just leave her completely, block her from everywhere and just do not meet her at all. It's not going to be easy. It's going to be hard. मैं ये बैठ के नहीं बोल रहा हूँ कि it is going to be extremely easy कि तुम डिसाइड कर लो कि छोड़ दूंगा. एक सिगरेट छोड़ते you get the तलब,
तुम्हें अटेंशन की तलब होगी, यू विल बी क्रेविंग हर अटेंशन, एंड इफ शी जस्ट टेक्स्ट यू एक बार, यू विल बी लाइक फक डूड, आई एम गोइंग बैक, एंड दैट्स गोना बी वेरी हार्ड, बट यू हैव टू चूज। तुम्हें टेम्पररी हार्ड में रहना है क्या 1-2 महीने के लिए, या फिर तुम्हें जब तक वो तुम्हारी लाइफ में, जब तक तुम्हारी वो गांड मार रही है, तुम्हें उस टाइम पीरियड तक रहना है। बिकॉज जब तक वो तुम्हारी लाइफ में, यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। मेरे लाइफ के 6 महीने मैंने बर्बाद किए, मेरी बॉडी पे फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं डाइट पे फोकस नहीं कर पा रहा था, मेरे जो भी ऑनलाइन बिजनेस गोल्स थे उस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। आई कुड हैव डन मेनी थिंग्स बट आई डिडंट, बिकॉज आई वाज स्टक इन दैट लूप, एंड बस वही मेरे दिमाग में 24/7 चल रही थी, लाइक 24/7 ओनली दैट शिट वाज रनिंग इन माय हेड। When I decided to leave her, हुआ क्या, 2 महीने I was very fucking like in pain bro, कि उसकी याद आ रही थी 24/7, मुझे याद, मतलब दो मेमोरीज के टेंशन की, all of that shit। उसके बाद पता है क्या हुआ, I was improving myself। अभी when I started getting attention from other places and not just her, she seemed very less important for me, and that is I think the only solution। You have to cut ties from her completely, bring yourself up to such a level कि तुम्हें attention बाकी के जगहों से भी मिल रही है, that is accessible attention। जिम जाके, लीन होके, अपने आप को फनियर बना के, पर्सनालिटी डेवलप करके, यू नो लाइक जो भी है, अपने आप पे काम करके, खुद से कंटेंट होके, जब तुम अपने आप पे काम करोगे ना बहुत टाइम तक, यू विल स्टार्ट सीइंग अटेंशन कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस एज वेल, एंड व्हेन यू नो दैट यू हैव a variety of options out there and you can choose, you have the power to choose, why would you go to a person who you know is going to show you middle finger? When I had the pool of choices, I didn't go back to her, but एक mistake मैंने ये की कि I still kind of gave her that power कि मैं जो choose करूंगा, मैं चूज करके इसको जेलस कराऊंगा, which was again I was living for her, but वो भी चला गया, फेड हो गया, again I was an immature 19-year-old fucker। If you are in this position, it's gonna be painful brother, बहुत पेनफुल होगा उसको छोड़ना। याद आएगी उसकी वो साथ स्पेंड किए हुए मेमोरीज की याद आएगी, उसकी झूठे बातें जो आई लाइक यू वो सब बोलती है बहन की लौड़ी की, सारे याद आएगा, बट तुम्हें क्या करना है, fuck that shit, work on yourself, try to get attention from outside places, go get rejected from girls, go ask out girls, improve your looks। जो उसके बाद तुम्हारे दिमाग के कोने में तब आएगी वो, when you just want to make her jealous। It's again not a good thing, but better than you spending your life or wasting your life trying to get her।